Good morning, student. Today we will discuss about the one of the important bond parameter, that is polarity of bond. Okay, dear. So let's start. No bond or compound is either covalent or ionic. कोई भी bond और कोई भी compound 100% ionic या covalent नहीं होता है. Each bond has some covalent or ionic character. If the molecule is covalent, then it has ionic character. If the molecule is ionic, then it contains some covalent character. Therefore, each covalent molecule has some ionic character, that is known as the polarity. तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो आयनिक करेक्ट होता है उसी को ही बोलते हैं पोलैरिटी. ओके डियर. नाउ टाइप्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड. The covalent bond is divided into the two category on the behalf of the polarity. First is the non-polar bond. Non-polar bond is formed between two similar atoms having the similar electronegativity. Okay, dears. Covalent bond and the non-polar bond, and the molecules formed by the such bond is known as the non-polar molecule. Okay, dear. The share pair electron remain the exactly in the mid of the both atom. जिन atoms के बीच में bond बनता है non-polar, उन दोनों के बीच में ही इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर प्रेजेंट रहता है. ओके डियर. Example H2, N2, O2, Cl2 molecule, etc. All the molecules have the similar atoms. Okay. Non-polar covalent bond. The polar covalent bond is formed between two dissimilar elements atoms having the different electronegativity. Electronegativity is called polar covalent bond, and the molecules are formed known as the polar molecules. Okay. Okay. The share pair of electron does not remain between the bonded atoms, but is attracted towards the more electronegative atom, with the result of the atom will require a partial negative charge and another atom require a partial negative charge. Therefore, two poles are formed in the molecules dipoles. Okay. For example, HCl having the electronegativity of chlorine is high and electronegativity is hydrogen is low. Therefore, the shared pair electron attracted by the chlorine. Therefore, the chlorine bears a small negative charge and the hydrogen bears a small positive charge. Therefore, two poles are formed and the molecule is known as the is act as a dipole. Okay, or polar. Okay, dear. The molecules has partially ionic character. Therefore, the जो molecule होगा इसमें partial ionic character develop हो जाएगा. Greater the difference in electronegativity, more it's the polarity or ionic character. Okay, dear. The force between the molecules is strong dipole attraction. जो force of attraction लगेगा इसमें strong dipole attraction होगा. Example NH3, HCl, H2O, HF, etc. ये शो किया गया है मैंने, जो ऊपर आपको डिस्कस किया गया. डाइपोल मोमेंट म्यू. द डाइपोल द डिग्री ऑफ पोलैरिटी, जो डिग्री ऑफ पोलैरिटी होती है, हाउ much bond is polar. Okay, in the it is given by the dipole moment. Okay, dear. The degree of polarity in the polar compound is given by its dipole moment. Dipole moment is stated as the product of the net charge, और चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, and the distance between two poles और bond length between two poles एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, तो इन दोनों के न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसी को बोल रहा है. तो इट इज नोन एज द बॉन्ड लेंथ आल्सो. ओके. नाउ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू. इट इज कैलकुलेटेड बाय एज the equation mu dipole moment equal to charge into distance of separation of charge.
डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज और बॉन्ड लेंथ। ओके, तो चार्ज इंटू बॉन्ड लेंथ, चार्ज को बॉन्ड लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, इट इज मेजर्ड इन डिवॉय यूनिट, डिवॉय यूनिट, 1 डिवाई इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। ये एसआई यूनिट में आपका एसआई यूनिट में ये वैल्यू होगी। ओके, द रिलेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। It is also equal to 1 into 10⁻18 ESU centimeter, ESU electrostatic unit, okay dear. It is a vector quantity, greater the value of dipole moment, greater is polarity। जितना ज़्यादा dipole moment होगा उतनी ज़्यादा polarity होगी। okay dear। Now it is depicted by crossed arrow put on the Lewis structure। Lewis structure में crossed arrow अगर कहीं put है, इसका मीन से वो dipole moment को शो कर रहा है, वो molecule polar है। ओके डियर, the cross is on positive end and the head is on negative end। जो cross एंड होता है वो पॉजिटिव एंड की तरफ होता है और जो हेड होता है वो नेगेटिव एंड की, मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मींस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से किसकी तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ मूव कर रही है। ओके डियर, ओके, ये द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस्ड एरो इज अपोजिट टू द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। जो डायरेक्शन ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट की, इसके अपोजिट साइड में आपका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। सिंस डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। देयर वेक्टर क्वांटिटी मीन्स क्या होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ होता है। और एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें केवल क्या होता है, मास होता है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। इट्स रिजल्टेंट इज गिवन एज, तो इफ ए ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ABC having the bond angle theta, therefore resultant dipole moment of the molecule is mu equal to √μ1 square plus μ2 square plus 2 μ1 μ2 cos theta, where mu is the dipole moment of ABC molecule। या resultant dipole moment, μ1 is the dipole of due to the C atom and μ2 dipole due to the atom A, theta equal to bond angle between two atoms। From the above relationship that the value of mu increase with decrease in dipole moment, जैसे जैसे आपका थीटा का मान बॉन्ड एंगल घटेगा म्यू का मान बढ़ेगा, या अगर बॉन्ड एंगल बढ़ता है तो म्यू घटेगा। ओके डियर, नाउ डाइपोल मोमेंट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल हैविंग दैट ओनली 2 एटम्स। होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, होमो एटोमिक कैसे होंगे, मतलब जो सेम एटम से बने हो, और सेम एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। जब नॉन पोलर हैं, कोई पोल्स बने ही नहीं है, देयरफॉर हैव जीरो डाइपोल मोमेंट लाइक H2O2 Cl2 एटसेट्रा। इनके पास क्या होता है, जीरो डाइपोल मोमेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो। हेट्रोएटोमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोएटोमिक क्या होंगे, जिनके अलग अलग एटम्स होंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होगा। Therefore, like HF, HCl, CO, etc. have some dipole moment, okay, due to difference in electronegativity. Okay, get it dear, clear? Now, mu of the polyatomic molecules की बात करें अगर, polyatomic more than the molecules having more than वन टाइप्स ऑफ बॉन्ड, एक से ज़्यादा टाइप के बॉन्ड होंगे। यहाँ तो एक ही टाइप का बॉन्ड था, अब यहाँ पे एक से ज़्यादा बॉन्ड होंगे। ओके डियर, तो अलग अलग बॉन्ड होने के पर वो केवल बॉन्ड ही नहीं आपका अफेक्ट करता है डाइपोल मोमेंट की, उनका ज्योमेट्री भी अफेक्ट करती है। देयरफॉर लीनियर ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, अभी डाईएटॉमिक की बात करें, अब लीनियर ट्राईएटॉमिक। लीनियर ट्राईएटॉमिक CO2, H2, BF2, HgCl2 etc. having zero dipole moment because two identical atoms in the opposite direction, bond angle 180। देखिए BF2 की बात करें, बोरॉन बेरिलियम
Bf2, ठीक है, बेरिलियम होगा यहाँ पे, ओके सॉरी, BeF2 की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, BeF2 की बात करेंगे, तो आपका क्या होगा, एक F इस तरफ है और दूसरा F इस तरफ है, सेम ताकत के दो एटम, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की दो एटम अपोजिट साइड में हैं, देयरफॉर इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ओके डियर। बेंट ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, बेंट की बात करें अगर, जो मुड़ा हुआ हो, कुछ एंगल बनाता हो, लाइक H2O, तो दे हैव सम डाइपोल मोमेंट, द डाइपोल मोमेंट ऑफ द H2O इज 1.85 डिवोई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कंपटीशन में IMCQ में आपके एज सच पूछा जाएगा। वाई दे हैव डाइपोल मोमेंट, सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचे, तो इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा ये आएगा। ओके डियर, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द उसमें कूलम मीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इनटू किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करके 3.36 इंटू 10⁻30। ओके, देयरफॉर इन द कूलम मीटर द डाइपोल मोमेंट वैल्यू is 6.17 into 10⁻30. Other example of the bent molecule is SO2, H2, H2S, F2O, Cl2O, etc. Okay dear. Now tetraatomic molecule, the molecule like BF3, BCl3, SO3, etc. have zero dipole moment due to symmetry. सिमिट्री हो, लीनियर हो, प्लेनर हो, सिमिट्री हो, लीनियर हो, प्लेनर हो, सिमिट्रिक हो, लीनियर हो और प्लेनर हो, मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। ओके डियर, BF3 हैज जीरो डाइपोल मोमेंट बिकॉज इसका डाइपोल इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, इन दोनों का ऐड करेंगे तो इसके इक्वल होगा जो अपोजिट साइड में है, देयरफॉर जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा। Okay dear, the molecule like NH3, NF3 etc. have some dipole moment due to unsymmetric structure. Okay, NH3 ये हाइड्रोजन 3 लगे हैं, यहाँ पे सबका डायरेक्शन किस तरफ होगा, नाइट्रोजन की तरफ, और ये लोन पेयर है, लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट भी कहाँ होगा, लोन पेयर की तरफ। ओके, तो रिजल्ट इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा 4.90 इंटू 10⁻13 कूलम मीटर, और जो NF3 है नाइट्रोजन टेट्राफ्लोराइड है, फ्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन नाइट्रोजन, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू फ्लोरीन, देयरफॉर द डाइपोल मोमेंट अपोजिट टू द लोन पेयर डायरेक्शन, लोन पेयर डाइपोल, देयरफॉर द नेट डाइपोल मोमेंट इज लेस देन द अमोनिया। ओके, क्वेश्चन रेज होता है, अमोनिया हैज ग्रेटर डाइपोल मोमेंट देन NF3। ओके, तो दैट इज द रीजन, द फिगर शो द रीजन व्हाई द अमोनिया हैज ग्रेटर डाइपोल मोमेंट देन द NF3। ओके, पेंटाएटॉमिक मॉलिक्यूल, पेंटाएटॉमिक हूँ, पेंटाएटम मतलब 5 एटम्स हों, like 4 Cl4, SiF4, SnCl4 etc. have zero dipole moment because their symmetric tetrahedral structure में बताया, symmetric, regular, linear, the molecule have zero dipole moment. PCl5 hexaatomic molecule है, SF6 heptaatomic molecule है, have zero dipole moment due to their regular structure बता रहा हूँ, linear, regular, geometric और आपका planar have zero dipole moment. Okay, so that is the things about the inorganic molecules. Now dipole moment in organic molecules. polar structure, linear structure, polar structure, symmetric structure has zero dipole moment. Benzene, naphthalene, diphenylene etc. have zero dipole moment. Okay dear, trans isomers have zero dipole moment, while cis have not zero dipole moment. Like ये एग्जाम्पल है, cis 1,2 डाइक्लोरोइथीन हैव जीरो डाइपोल मोमेंट 1.9 डिवॉई, वाइल ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन सेम एटम ट्रांस पोजीशन पे हैं तो इनका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, बिकॉज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन को
वो खींच रहे हैं, देयरफॉर नेट रिजल्टेंट जो आएगा वो 0 आएगा। बट इन अनसिमेट्रिक एल्कीन, अगर अनसिमेट्रिक एल्कीन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनसिमेट्रिक एल्कीन है तो ट्रांस आइसोमर्स का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 नहीं हो सकता है, वो 0 नहीं हो सकता है। दे डज नॉट जीरो डाइपोल मोमेंट, इनके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। बिकॉज देखिए अलग अलग आपके एल्काइल ग्रुप हैं, क्या हैं, अलग अलग आपके एल्काइल ग्रुप हैं, एक CH3 है, C2H5 है, तो इसका CH3 का डाइपोल मोमेंट अलग होगा, C2H5 का डाइपोल मोमेंट अलग होगा। अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, चाहे सेम डायरेक्शन में करेंगे तो डाइपोल मोमेंट ऐड होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे तो इनका डाइपोल मोमेंट डिफरेंस लिया जाएगा। देयरफॉर the trans unsymmetric alkene have not zero dipole moment. Okay dear, now dipole moment of ortho meta para isomers, ortho meta para isomers कहाँ होते हैं, बेंजीन में होते हैं। बेंजीनिंग 1-2 पोजीशन होती है, आर्थो 1-3 पोजीशन होती है, मेटा और 1-4 पोजीशन होती है पैरा। ओके डियर, तो आर्थो में देखिए बॉन्ड एंगल 860 है, मेटा में 120 और पैरा में 180। और अभी जस्ट 2-3 मिनट बिफोर मैंने डिस्कस किया है कि बॉन्ड एंगल जैसे बढ़ेगा डाइपोल मोमेंट घटेगा। देयरफॉर द डाइपोल मोमेंट इज इन ऑर्डर, आर्थो हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, ओके, देन मेटा, देन पैरा। नाउ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसको आप रट लेंगे बिल्कुल। ओके, द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर ऑफ ए बॉन्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज आयनिक परसेंट ऑफ आयनिक करेक्टर ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, ऑब्जर्व जो हम ऑब्जर्व करें, एंड डाइपोल मोमेंट इन 100% आयनिक कंपाउंड। अगर उसको 100% आयनिक कंपाउंड मान लिया जाए तब डाइपोल मोमेंट क्या है, और उसका एक्चुअल डाइपोल मोमेंट क्या है। एक्चुअल डाइपोल मोमेंट में उसका अगर आयनिक डाइपोल मोमेंट को डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट आयनिक करेक्टर निकल आएगा। ओके डियर, और इन अदर फॉर्म म्यू ऑब्जर्व म्यू अपॉन म्यू आयनिक इंटू 100 और म्यू प्रैक्टिकल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। ओके डियर, तो दैट इज द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड और डाइपोल मोमेंट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इससे ज़्यादा आप इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके MCQ आपके फॉर्म होंगे। ओके डियर, थैंक यू।